Hello student, today we are going to study Civics class 6 chapter 1 Understanding Diversity. Because you are used to come in the new class in the social science, there are three subjects: geography, history, civics. This book is civics, which we used to call it as social and political life. Before going to start this chapter, I will tell you the meaning of this. What is the meaning of this? Earlier, the people used to live in jungles, or you can say in the forest. They used to live in a group. They do not used to live alone or isolated. पहले के टाइम में लोग वाग जंगल में रहते थे. वो लोग अकेले नहीं रहते थे, ग्रुप में रहते थे. अगर वो लोग अकेले रहते तो वो जल्दी बोर हो जाते, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाते, एंड दे यूज्ड टू बिकम बोर्ड. इफ द पीपल यूज्ड टू लिव अलोन, दे व्हाट दे यूज्ड टू बिकम alone, and they can't survive for a long time. Because of this, the people used to live in a group. अगर हम लोग ग्रुप में रहते तो काफी सारी चीजें जानने को मिलती है कि किस पर्टिकुलर इंसान का क्या बिहेवियर है. हमें बहुत सारी नॉलेजेस मिलती हैं. बातचीत करने से हम डिप्रेशन में नहीं आते, हमें एक जॉयफुल हम लोग रहते हैं. तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है. इससे हम कहते हैं सोशलाइज का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में रह रहे हो, अपना फैमिली से सोशल नहीं. यहाँ हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की. यानी आप स्कूल में आते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी सब अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, तो आप उनसे बहुत सारी चीजें करते हो. या फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिसको हम एक समाज बोलते हैं, वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. इसको हम बोलते हैं सोशल एंड लाइफ. अब बात करते हैं पॉलिटिकल की. पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक. राजनीतिक इन द सेंस जहाँ पे हम अलग अलग पार्टी के लोग देखते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, फिर वो हमारे लिए कुछ ऐसे प्लान्स बनाता है जो हमारे लिए जरूरत होता है. वी आर चूजिंग सम लीडर्स, some political party which they make our plans, how what is the particular thing is beneficial for us and what particular thing is not beneficial. It is utmost helping to a country. वो हमारे कंट्री को हेल्प करता है फ्रॉम डेवलपिंग टूवर्ड्स द डेवलप नेशन. अभी हमारा देश एक विकासशील है, बट फिर वो विकसित करने के लिए उसके लिए हेल्प करता है. देयर आर द न्यूमरस ऑफ वेज टू बिल्डिंग दिस थिंग्स. इफ वी टॉक अबाउट इन दिस, तो नाउ कम टूवर्ड्स दिस चैप्टर. In this chapter, first I will tell you the meaning of understanding diversity, then making of friends, Samir 1, Samir 2. Then I will tell you about what does the diversity add to our life. Then I will explain about diversity in India, how do we explain the diversity. Then about Ladakh and Kerala, and about unity in diversity. So first starting with understanding diversity with what? Diversity जो हम हिंदी में कहेंगे भिन्नता या अलग अलग चीजें. सिंपल वर्ड में अलग अलग चीज. इसमें क्या होता है, द थिंग इज वी आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, वी आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, we used to speak different languages, we used to wear different clothes. If I give you one example, we all are humans. If we used to wear same kind of clothes, can this is possible? If we wear the same kind of clothes, we become bored easily. We can become bored because we bored क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह के इंसान है, एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे तो ये कोई डाइवर्सिटी नहीं होती. डाइवर्सिटी कैसे होती है? इफ यू गो इन योर क्लासरूम, यू फाइंड योर फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट religion, they belong from different state, they used to speak different languages, their food having is different, their dressing sense is different, and their thinking ability is also different. If we talk about the society or some politics, so they are also having their different religion, they belong from different state, they used to speak different languages, and they have different scenario what they have to do and what they do not have to do. So these are the scenarios which they used to help this particular people. Now, in this sense, we can say that the diversity is a utmost important part of our life where we enjoy this thing. डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग चीज़ें जान पाते हैं. और उसको और डीप समझने के लिए मैं आपको एक इसमें जो स्टोरी दी गई है टेक्स्ट बुक में वो बताऊंगी, मेकिंग फ्रेंड्स समीर 1 और समीर 2 के बारे में. ये जो बच्चे हैं, एक का नाम है समीर 1, समीर 2. स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? एक बच्चा न्यूज़पेपर लेकर आता है, इंग्लिश हिंदी, और एक बच्चा आता है जो साइकिल पर आता है और वो ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो वो रुक जाता है. तो कहता है कि आप मुझसे हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो. तो जो बच्चा साइकिल पर होता है वो उससे कहता है कि मुझे जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए और मुझे हिंदी भी आती, मुझे हिंदी भी पसंद है. फिर इतने में ट्रैफिक लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है तो बच्चा चला. ऐसे नेक्स्ट डे होता है, वो फिर वो बच्चा उससे पूछता है कि तुम्हें दोनों लैंग्वेजेस आती है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मुझे इंग्लिश तो आती है, बट मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट
हिंदी है तो मुझे हिंदी भी आती है। तो उसने बच्चे ने पूछा कि इंग्लिश होता क्या है, क्योंकि जो बच्चा साइकिल पे था उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, और जो बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा है वो कभी स्कूल नहीं गया। ऐसे फिर दोबारा से ग्रीन लाइट हो जाती है, वो बच्चा चला जाता है। देन फिर ऐसे तीसरे दिन अब वो बच्चा न्यूज़पेपर सेल करता हुआ आता है, फिर वो उससे कहता है कि मेरा नाम समीर है, तो दूसरा भी ये कहता है कि मेरा नाम क्या है, समीर है। तो न्यूज़पेपर वाला बच्चा है वो जो साइकिल पे बच्चा बैठा है उसको बोलता है समीर एक, और अपने आप को कहता है समीर दो। फिर वो ये बताता है कि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरी मदर वहाँ पे मेरठ में रहती है। फिर इस तरह से तीसरे दिन भी ग्रीन लाइट हो जाती है, वो बच्चा चला जाता है। ऐसे फोर्थ डे आता है, फिर वो बच्चा न्यूज़पेपर सेल करने के लिए आता है और वो उससे बोलता है कि मुझे आप न्यूज़पेपर दे दो। फिर वो बच्चा बहुत सैड था, तो समीर एक जो था वो समीर दो से ये पूछता है कि क्या हुआ। वो ये बोलता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं, यानी वहाँ पे दंगे होने की वजह से उसको बहुत सैड होता है, और फिर वो उसको न्यूज़पेपर देखा जाए। इसी तरह से फिर ग्रीन लाइट हो जाती है और वो चला जाता है। ऐसे फिफ्थ डे आता है, तो जो समीर एक था वो साइकिल लेकर वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होता है और उस बच्चे का वो वेट करता है जो न्यूज़पेपर सेल करता है, पर उसके बाद वो बच्चा कभी दिखाई नहीं देता। अब इस स्टोरी में क्या चीज़ है, जो समीर एक है वो काफी रिच है और समीर दो है वो बिल्कुल गरीब है, यानी द समीर वन इज रिच एंड समीर टू, यानी जो समीर दो है वो क्या है, पुअर है। समीर एक इज हिंदू, समीर दो वो क्या है, ही इज अ मुस्लिम। इसमें बात करें समीर एक, ही इज हैविंग ऑल द अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल द काइंड्स ऑफ वर्क। समीर दो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी टू गो द स्कूल बिकॉज हिज फैमिली इज very much poor. His family used to live in Meerut and they can't afford to take all the advantages of the life. They can't go towards the school also. यानी समीर एक के पास सारी अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन लेने की, समीर दो के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस केस में ये सिनारियो मिलने वाला है कि दोनों बच्चे हैं, दोनों की समीर एक थोड़ा बड़ा है, समीर दो छोटा है, बट बिकॉज ऑफ द देयर इकोनॉमिक कंडीशन उनका जो है पढ़ने का ढंग और उनका रहन सहन का ढंग कितना डिफरेंट है। इस वर्ड को हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। वी आर द सेम पीपल बट द अपॉर्चुनिटीज आर डिफरेंट, तो हमें ये अलग अलग चीजें मिलती है। एक पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता है। पहले के टाइम में क्या होता था, देयर इज वन सिनारियो दैट इज विद द वर्ड वी यूज द अनटचेबिलिटी बिफोर द इंडिपेंडेंस। हमारे देश में आजादी से पहले ऐसे बहुत होता। अनटचेबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या होता है, जो पहले अपर कास्ट के पीपल होते थे, दे डू नॉट अलाउ द लोअर कास्ट पीपल टू टच देम। व्हाट दे थिंक दैट इफ द लोअर कास्ट पीपल यूज्ड टू टच देम दे बिकम इम्प्योर। मतलब अगर ऊंची जाति के लोग नीची जाति लोगों को, अगर नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोग से टच कर जाते तो वो क्या हो जाएंगे, अपवित्र। अपवित्र फिर उनके पंडित से सारे क्रियाक्रम कराने पड़ेंगे, गंगा जल से नहाना पड़ेगा, फिर वो क्या होंगे, पवित्र होंगे। ये हमारे ऐसे कुछ धर्म बनाए गए थे जिसमें देखा गया कि किस तरह से लोग ऊंची जात के लोग नीचे जात के लोगों को परेशान करते। उनके लिए एक ऐसा सिनारियो बना दिया गया कि आपका काम सिर्फ साफ सफाई का, व्हाट यू हैव टू डू इज clean the home, clean the verandas, clean the latrines, clean the gardens. Your only work is to do the cleaning. They do not allow to go any of the temples. They do not allow to go any of the school. They do not allow to go anywhere. They used to live at a particular place. And क्या होता था, ना तो उनको स्कूल जाने दिया जाता था, ना उनको टेम्पल जाने दिया जाता था। जब लोग वहाँ ग्रुप में बैठते थे तो ऊंची जाति के लोग ऊपर बैठते थे और नीचे जाति के लोग नीचे बैठते थे। तो उनके साथ ये ऐसी बहुत सारी चीजें की गई जिसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, यानी छुआछूत को कंप्लीटली हटा दिया गया। पर बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा बहुत होता था। पहले के टाइम में ये होता था, इफ योर फादर इज डॉक्टर तो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, इफ योर फादर इज इंजीनियर तो यू हैव टू बिकम इंजीनियर। You can't choose any of the profession according to your desire. Earlier the thing is that what your father is, you have to become that thing only. मतलब यानी पहले के टाइम में ये होता था, अगर आपके फादर डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, अगर आपके फादर इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, अगर आपके फादर टीचर है तो आपको टीचर ही बनना पड़ेगा। पर पहले ऐसा नहीं था कि आप अपने डिजायर से कुछ भी बन सकते हो। पहले यही था कि जो आपके फादर है वही आपको बनना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे जात के लोग थे, उनको एक पर्टिकुलर सिनारियो में बांध दिया गया कि आप नीचे जात के लोग हो, आपको समाज से दूर रहना चाहिए, आप पढ़ने लिखने नहीं जा सकते हो, आप कोई टेम्पल नहीं जा सकते हो, आपको हम सबसे दब के रहना पड़ेगा। हमारी
आपकी परछाई भी ऊंची जाति लोगों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हम हो जाएंगे अपवित्र। तो ये भी एक तरह का इनइक्वालिटी हम इस डाइवर्सिटी में देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी फाइंड इन आवर कंट्री, लाइक सम अपर कास्ट पीपल, सम लोअर कास्ट पीपल। तो ये सारी चीजें हम अपने देश में देखते हैं। यहाँ पे एक और सिनारियो आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि पहले के टाइम में अर्लियर पीपल यूज्ड टू वॉक by the foot to go from one place to another place. They use the horse, then they use the camels, then they use the bullocks. Different thing they use to go from one place to another place. As the time passes, but the improvement in their thinking level, in the developing of their mind, they used to start developing numerous of things to go from one place to another place. यानी पहले के लोग वो जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो लोग फुट का यानी पैरों पैदल चल के जाते थे। फिर उन्होंने हॉर्स का यूज़ किया, फिर उन्होंने कैमल्स का यूज़ किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, जिससे उनको काफ़ी हद तक ऐसा होता था कि ये चीज़ हमें करना चाहिए नहीं, एक जगह दूसरी जगह जाना चाहिए नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ये होता है वी कैन लर्न न्यूमरस ऑफ थिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डाइवर्सिटी इज द थिंग वेयर वी कैन एंजॉय आवर लाइफ, वी कैन लर्न numerous of things from the different people. We learn the innovative way to learn what are the particular things to learn this. So these are the particular scenario which used to help us what we have to do, what we do not have to do. These are the particular thing which we are going to help in our इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग। तो इसमें ये भी देखा गया है कि डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, ये ऐड करती है कि मान लीजिए आई गिव यू द एग्जांपल, इफ इन योर क्लास वन child is belong from the Gujarat and the another child is belong from the northeast, take the example of our son, you can first think that we belong from the different state. पहले तो हम ये देखेंगे हम different states से belong करते हैं, then we see we used to speak different languages, just like the child which used to belong from Gujarat, he used to speak Gujarati. The child who belongs from the Assam, he used to speak the Assami language. If we talk about the food, so like the people of the Gujarat, like the child which belong from the Gujarat, he used to eat different kinds of like dhokla and all this stuff. If we talk about the Assamese, they used to eat rice and the non-vegetarian foods. If we talk about the other way of thinking, just like the dressing sense, the Gujarati people wear the different kinds of, in Assam we talk about, they also wear the different kinds of clothes. In the, if we talk about the religion, the practicing of religion or the worshipping, यानी जो पूजा करने का ढंग होता है, they are also very much different. So this is are also the part of the diversity. If we talk about the thinking level, yes, the thinking level is also a different. If we talk about the weather, so like the weather is also different in Gujarat, it is a very hot. If we talk about the Assam, like it's kind of all kind of weather, but mostly it is of hot is also there, cold is also there. There are different things we can see over there. If we talk about more things, just like what are you doing right now, what are you not doing right now, these are the different scenario we can see over here. If we talk about more in this in diversity, what is add, like from the different geographical background, from the different historical background, we used to learn numerous of things from the geographical point of view, from the historic point of view, from the way of thinking, the innovative ideas, the numerous of things we learn from this diversity. If we talk about the next the point is that is डाइवर्सिटी इन इंडिया, हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में देर आर द डिफरेंट स्टेट, दे आर हैविंग देयर ओन language, they are having own dressing sense, they are having their own food habits, they are on having own dancing culture, they are own having the geographical background, they are own having the historical background, they are having the different kind of crops they are growing, they are having the different soil color, texture. There are the different kinds of things we can see in our diversity. Diversity is utmost important part of our life where we can enjoy it, we can learn numerous of the things by the different people. So these are the particular scenario where we learn that how the diversity is add to our life. And in this case, the particular we can learn from everybody, not for the particular like in our classroom. We can learn from our classroom, we can learn from our friends, we can learn from our society. If we go in for the traveling purpose, we can, if we meet with any of the people, we can talk with them and we can learn numerous of things, like what kind of particular thing is going to happen. We are very lucky that we are the Indians, and these are the things is going to be happen in our country that used to help to learn numerous of way how we have to
interact with the people, how to learn the numerous of ways of think, and we can improvise our knowledge in day-to-day life. So these are the particular scenario which we see in this chapter, that the diversity is a very good thing to learn the different way of thinking, the religion purpose. All the people of different religion, they used to worship, but their practicing habit is different. The food habit is different. The dressing sense is different. Everything is different. We have seen that what does diversity add to our life, which I used to explain you that कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है. स्कूल में, सोसाइटीज में वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट विच आर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दे wear different clothes, they used to speak different language, their thinking is different, their food habits are different, this all things are very much different. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि हम लोग स्कूल में जो है अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका फूड खाने का ढंग अलग अलग होता है, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, सबके थिंकिंग अलग अलग होती है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है. ये चीज़ हम अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटीज़ में सभी जगह देखते हैं. इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. अगर एक तरह की चीज़ें होगी तो हम कैसे बोर हो जाएंगे. डाइवर्सिटी से हमें एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज वी used to know and we used to learn numerous of things from the different people. If I belong from Gujarat and somebody is belong from the South India, I used to learn numerous of things. First thing, we exchange our ideas, we exchange the what the things particularly used to speak in a particular language. Like if we talk about the Gujarati, we used to say like for namaste we used to say it like Jai Shri Krishna, and if we talk about the South Indians, they used to say the Vadakkam in a different languages. So different types of thing we used to learn from them. यानी अलग अलग भाषाओं में हम लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं. Different food habits, like we are the vegetarians, we learn what the things we have to eat, and वो जो उनकी चीजें, जैसे उनके इडली सांभर बनता है, वड़ा वगैरह बनता है, तो वो सारी चीजें हम उनको उनसे रेसिपी सीखते हैं कि वो लोग क्या चीज करें. फिर पूजा करने का ढंग, व्हेन वी वर्शिप, हमारा पूजा करने का भी ढंग अलग अलग होता है. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, सभी धर्मों में पूजा होती है. वेदर इट्स हिंदू, वी गो टुवर्ड्स द टेम्पल. इफ देयर इज अ मोमेडियन, ही यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द मॉस्क. इफ देयर इज अ क्रिश्चियनिटी, दे यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द चर्च. इफ देयर इज अ सिख, दे यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द गुरुद्वारा. सो ईच एंड एवरी रिलीजन पीपल यूज्ड टू डू worship, but are of the different kind. So this is also one kind of a diversity. In our India, we are majorly 8 types of religion are there. हमारे देश में मुख्यतः ऐसे तो बहुत से 1600 लैंग्वेजेस हैं, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ धर्म, पर मेजरली 8 धर्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, सब चीज़ क्या है, अलग चीज़ें हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. अब इसमें एक और चीज बताया गया है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी. जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, जैसे गुजरात के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में. अगर हम जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जैसे उसमें से लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर बन गया है. और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर हम असम की बात करें, तो यहाँ पे भी खाने फूड हैबिट्स बहुत अलग अलग हैं. जो लाइक अपर साइड होते हैं वो लोग भी नॉन वेज खाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी नॉन वेज फूड मिलता है, पर वो लोग ये सिर्फ नॉन वेज पे नहीं रहते हैं, वो लोग वेजिटेरियन फूड्स भी खाते हैं. अगर हम और आगे जाते हैं तो डाइवर्सिटी के बारे में, हमारे इंडिया में लाइक इन डिफरेंट स्टेट वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज. दे आर हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, different dance form they have, different wearing of clothes, the habit they have, their thinking style is different, they are acting over a different particular thing, they are having the different things. So this is the diversity in India which we can see. पहले के टाइम में मैंने जैसे आपको बताया, बिफोर द इंडिपेंडेंस पहले क्या ऐसा होता था, अगर आपका फादर डॉक्टर, तो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर. इफ योर फादर इज लाइक फ्रॉम द लोअर कास्ट, यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क ओनली. तो ये सारी डाइवर्सिटी थी जो हमें उस चीज को करने में रोकती थी. पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डाइवर्सिटी को हमें क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. पर्टिकुलर एक जगह एक धर्म में टिके नहीं रहना चाहिए. ये नहीं है कि हम किसी और चीज से नफरत करें, हमें उससे सीखना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीजें क्या हैं. जैसे हम अलग अलग धर्म से सीख सकते हैं कि उनमें पूजा कैसे होती है, उनका रहन सहन का ढंग कैसा है, उनका कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी थिंकिंग क्या है. हर पॉजिटिव चीजें हम लोग सीख सकते हैं, और जो हमारे देश को एक यूनिटी में बनाता है. नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट लद्दाख एंड केरला. लद्दाख इज इन द जम्मू कश्मीर. पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसमें आता था लद्दाख. अब लद्दाख एक बन चुका है हमारा
यूनियन टेरिटरी, यानी पहले स्टेट गवर्नमेंट का हक था, अब उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपना राज चलाती है। एंड वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आता है। आप देख सकते हो इस तरह से एक ईस्टर्न, जैसे अब ये मान लो हमारा इंडिया का मैप है और इसमें ईस्टर्न पार्ट में लद्दाख आता है। लद्दाख को किस तरह का रीजन कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट। आप सोच रहे हो कोल्ड डेजर्ट कैसे? बिकॉज यहाँ पे हमेशा 12 मंथ्स बर्फ रहती है और वाइट कलर का रहता है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत कम होता है। यहाँ के लोग ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या पहन के रहते हैं? वुलन क्लोथ्स। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज पश्मीना। एक तरह की शिप होती है, उसके बालों से एक वो पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट इट इज़ वेरी गुड इन द विंटर टाइम्स। इट इज़ वेरी मच यूजफुल टू अवर बॉडी विच यूज टू गिव द वार्म टू अस। एंड इनका ट्रेडिशन भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे लद्दाख से ये कहा जाता है कि लद्दाख से ही तिब्बत जो कि चाइना में है, यहाँ से बुद्धिज़्म गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड पर्पज से आए थे, जिसमें आप देख सकते हो ट्रेड पर्पज से किस तरह से लोग पहाड़ियों से आए थे और यहाँ पे इन्होंने ट्रेड किया था। यहाँ पे एक और एक केसर सागर से कहा जाता है जहाँ पे ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज दे यूज टू स्पीक दिस सॉन्ग एंड एवरी ईयर नंबर ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस एंड दे यूज टू गो टूवर्ड्स देयर फॉर enjoyment purpose and for their tourist purpose they're going towards this. In Ladakh, the one more thing, they are like they used to worship Buddhism and यहाँ पे आपको मुस्लिमिज्म भी मिलेगा। यहाँ पे आपको मुस्लिम लोग भी मिलेंगे जो यहाँ पे अराउंड 400 ईयर्स अगो पहले आए थे। यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग हैं, पर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादातर जो मिलेगा वो मिलेगा बौद्धिस्ट, जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि एक तो ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैंने ऑल द वेरी यू फाइंड माउंटेन्स, 12 months there is a snow, then you will find the white or the cold desert all the times where the people used to drink the water by melting the snow, यानी बर्फ को पिघला के लोग पानी पीते हैं। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, द एग्रीकल्चर इज वेरी लो। यहाँ के लोग ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू वियर द वुलन क्लोथ्स एंड the famous thing they have the Kesar saga which they used to sing. And one more thing, the Buddhists used to go from there towards the Tibet. This is also one of the important center for the trading purpose in the earlier times. There is one more thing, earlier the people used to travel by the foot. पहले लोग फुट से ट्रैवल करते थे, फिर हॉर्स से ट्रैवल करते थे, फिर कैमल से ट्रैवल करते थे, फिर बुलक कार्ट्स के थ्रू ट्रैवल करते थे। ऐसे टाइम पासेस हुआ, फिर इंसान ने अपने आप को डेवलप किया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ बनी। कोई फुट से जाता था, कोई कैमल से, कोई हॉर्स से, फिर उसके बाद तो बुलक कार्ट से ऐसे टाइम पासिस हुए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी कि लोग वाग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो हमें से ये चीज़ पता चलता है कि हमारे देश में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। द लैंग्वेज दे स्पीक, द रिलीजन दे हैव, द क्लोथ्स दे वेयर, द एजुकेशन दे हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ सिमिलरिटी दिस हैव। नाउ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया इनइक्वालिटी, यानी एक तरह का इंसान है, उसके पास किसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास कम अपॉर्चुनिटी है, तो इनइक्वालिटी है और उसको हमें समानता लाने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। डाइवर्सिटी में देखा जाए तो एक और चीज़ होती है कि अलग अलग चीज़ों से हमें बहुत सारी जानकारी एंड वी यूज्ड टू गेट न्यूमरस ऑफ इंफॉर्मेशन द व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव। नाउ इफ यू गो टुवर्ड्स द केरला, केरला किस साइड आता है? साउथ इंडिया, दैट इज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसको हम साउथ इंडिया कहते हैं क्योंकि साउथ डायरेक्शन में आता है। इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्यों साउथ वेस्ट? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ की तरफ केरला आता है। केरला एक तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ इसका क्या है? ओशियन है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मीन्स मसाले, सच जैसे पेपर, जिसको हम काली मिर्च या काली मरी इन गुजराती में बोलते हैं। फिर यहाँ पे कार्डम जो इलायची को कहा जाता है। फिर यहाँ पे बहुत तरह के मसाला का उत्पादन होता है, यानी दे आर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन दिस साइड। यहाँ पे जो ट्रेडर्स आए थे, जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे, वो मोस्ट ऑफ मिडल ईस्ट में जो एशिया, जो गल्फ कंट्रीज हम कहते हैं, वो वहाँ से आए थे। दे आर द जूइश, दे आर द बुद्धिस्ट, दे यूज्ड टू कम ओवर हेयर टू डू द ट्रेड पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस के लिए वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने ट्रेड का काम किया था। इसी वजह से यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आए थे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको डैम्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ दे यूज्ड टू ड्रिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ